Good afternoon to all. Welcome to my channel Mathematics Icon and myself Obik Roy, your mathematics teacher. So in this lecture just we are going to cover the different questions from the area of the bounded region chapter, and it is actually the application of integration chapter, and the definite integral part will be used purportedly in this part. That means area of for finding the area of any closed bounded part. Okay. So in this video just we are going to cover different questions from this area bounded region, which are very important for the entrance level, main and advanced level exams. So very important lecture it is. Just try to view all the lectures fully, then you will get the idea how to solve the different types of questions. Various concepts were discussed also regarding the solutions, regarding every algorithm and whatever it is. Just try to get the idea, try to gather the knowledge from the various lectures. Okay, so you should perceive the concepts and the steps and algorithms. That means which type of questions are going to be solved by which process. That is important thing. Okay, so just you should consider the concepts and the solution process and the different questions from the various lectures. Okay, so just write the first question. पेन और पेपर लो, उसके बाद स्टार्ट करो. ओके और आप लोग को अगर ये लेक्चर्स वीडियोस और ये सब क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, जिससे मैं फ्यूचर में इस टाइप का ही वीडियोस जो है डिफरेंट वीडियोस में अपलोड कर सकूं. ठीक है, जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स plus x square. Y equals to 2 by 1 plus x square, and the another is y equals to x square. Y equals to x square. Okay, so it is your equation number 1 and is equation number 2. So at first try to figure out the intersecting points between these two curves. So here solving 1 and 2, ये सबसे पहले आप लोगों को निकाल लेना है. ठीक है, so 2 by 1 plus दोनों ही x का वैल्यूज है. देखो x स्क्वायर है कि नहीं है. फिर डायगोनल अगर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर minus 2 equals to 0. So that means x to the power 4 plus twice x square minus x square minus 2 equals to 0. That means x square plus 2 minus common x square plus 2 equals to 0. So that means x square minus 1 and x square plus 2 equals to 0. So x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स यहाँ से दो वैल्यू मिलता है, एक x इक्वल्स टू 1, दूसरा है x इक्वल्स टू माइनस 1. और ये जो है x स्क्वायर प्लस 2 ये कभी 0 के साथ इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. तो दैट मीन्स ये नेवर इक्वल्स टू 0 है कि नहीं. सो क्योंकि देखो x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है ना, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2. इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आएगा, तो रूट माइनस 2. इज इट ए रियल नंबर? It is a complex number, so you should not consider the complex number here. Okay, so here if x equals to 1 then y equals to 1. If x equals to minus 1 then y equals to 1. Then if x equals to 1 y equals to 1, that is the point is 1 comma 1. If x equals to minus 1 then y is also 1, that is minus 1 comma 1. Two intersecting points are there. Okay, now from 1 अब इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं. इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो मिल गया. y equals to 2 by 1 plus x square. अच्छा, यहां पर बोलो y equals to 2 by 1 plus x square. ये तो इर्रेगुलर कर्व होता है. सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कर्व है वो किसी भी एक्सिस को जो है टच करता है कि नहीं, ये पहले कंसीडर करते हैं. अच्छा, यहां पर सपोज y का वैल्यू 0 पुट कर दे, y का वैल्यू 0 पुट कर दे. देखो तो x का वैल्यू मिलता है कि नहीं मिलता है.
y का वैल्यू 0 पुट करने से x का वैल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि देखो ये डायगोनल मल्टीप्लाई होने से x का टार में 0 होगा, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स y का वैल्यू 0 यहाँ पर कभी नहीं हो सकता है। तो ये लिख लो y नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, x जो है वो 0 हो सकता है कि नहीं, यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर दें है तो 0, 1 प्लस 0 1, 2/1। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, y का वैल्यू क्या मिल रहा है 2। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 0,2, इस पॉइंट से जो है ये कार्व जो है पास होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा, यहां पर जो है ये y का वैल्यू जो 2 मिला, x का वैल्यू क्या पुट करने से 0 पुट करने से y का वैल्यू देखो मैक्सिमम आ रहा है। अब 0 के अलावा कुछ भी यहां पर पुट करो, 0 x इक्वल टू 0 तो पुट कर लिया, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, देखो y का वैल्यू 2 से कम ही आएगा, 2 से कम ही आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। उसके ऊपर y नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस y का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा। दैट मींस ये जो कार्व है x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि y का वैल्यू 0 कब नहीं होता है, जब भी कोई भी कार्व x एक्सिस को टच नहीं करता है तभी y नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और x एक्सिस को टच करने से ही y इक्वल्स टू 0 हो जाता है। हो गया। सो ये तो कंफर्म है कि ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है 0,2 जिससे वो पास हो रहा है, ये तो कंफर्म है कि नहीं। तो इक्वेशन नंबर 1 से सिर्फ हम लोग को यही मिला, हम लोग ये यूज करके ही हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, देखना। फिर फ्रॉम 2 क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो ये तो पैराबोला का इक्वेशन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 इंटू वाई। ये तो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस फॉर्मेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ऊपर की तरफ आएगा, वर्टेक्स तो 0 0 है, वर्टेक्स क्या है 0,0 है कि नहीं, और फोकस पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट यहां पर होगा 0,a, दैट मीन 0,1/4। हो गया। अब जो है यहां पर अगर कार्व ड्रॉ करें, ठीक है, कार्व ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये जो पहला है 0,2 पॉइंट से ये कार्व पास होता है 0,2, और ये जो 2 पॉइंट निकला ना y इक्वल्स टू 2, ये y का मैक्सिमम वैल्यू होगा। दैट मींस कार्व का हाइट जो है इस पॉइंट में सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो दैट मींस उसके बाद x का कुछ भी वैल्यू यहां पर पुट करो, कार्व का यही फिगर बनेगा, पैरेलल फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के तो टच नहीं करेगा ये, तो यहां पर ऐसे भी ये ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है ये कार्व, ये तो पैराबोला है, ये 0,2 है, लिख लो 0,2। फिर उसके बाद पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, वर्टेक्स तो 0 0 है, यहां पर इस टाइप का कुछ पैराबोला मिलेगा। तो बाउंडेड पोर्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये है कि नहीं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या क्या मिला, एक है 1,1 और ये है -1,1। तो यहां से अगर मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अरे सॉरी, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करूं, इस पॉइंट में x इक्वल्स टू क्या होगा -1 होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो यहां पर x इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। तो यहां पर एरिया का नाम दे दो OABC, ठीक है। सो एरिया ऑफ OABCO इक्वल्स, देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां, -1 से 1 तक जाना है, -1 से लेके 1 तक जाना है, ठीक है। ये पूरा निकालेंगे, ये पूरा, ये जो दिखाई दे रहा है उसका पूरा निकालेंगे। इस पूरा जो पार्ट है इसमें y का वैल्यू क्या है 2/1 प्लस x स्क्वायर dx। इससे माइनस करना है कौन सा, लिमिट तो -1 to 1 ही, एक गैप पोर्शन माइनस करना है। गैप पोर्शन किससे बाउंडेड है, इस कर्व से बाउंडेड है, दैट मींस x स्क्वायर dx। बस अब आंसर निकाल लो, ठीक है। अब तो क्या आंसर निकालना है और क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखो -1 to 1, 2 को बाहर लेके आ जाओ, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, और इधर x³ 3 -1 to 1, यहां पर 2, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया, tan इनवर्स x -1 to 1 -1/3 1³ -1 होल क्यूब,
बस आंसर निकाल लो उसका, है आंसर निकाल दो, आ जाएगा, है कि नहीं? होगा क्या? होगा, ठीक है, हो जाएगा शायद, है? तो यहाँ पर क्या करें अभी? तो 2 tan इनवर्स 1/8 माइनस tan इनवर्स -1/8, ये क्या पहला, फिर 1/3, ये तो 1 होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस 1 ही होगा, बस उसका ये कर लो, उसके बाद सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, x equals to minus y square, that means find the area of the region bounded by the curves, this curve and the line is x plus y plus 2 equals to 0, okay? तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। यहां पर देखो y square equals to minus x, that means y square equals to minus 4 into 1 by 4 into x, symmetrical about negative x axis दिखाई दे रहा है, ये symmetrical about negative x axis, so vertex will be 0,0 and focus point minus a, 0, that is 1 by 4, 0, और यहां पर ये x plus y equals to minus 2, that is x by minus 2 plus y by minus 2 equals to 1, that is point क्या क्या मिला, -2, 0 and 0, -2। now solving 1 and 2 करके देखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों कर्व्स के बीच है कि नहीं, ठीक है? तो यहां पर सपोज ये तो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर है, और यहां पर x इक्वल्स टू क्या आएगा, -y -2, है कि नहीं? दैट मींस -y स्क्वायर इधर -y -2, ठीक है? तो यहां पर -y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? ठीक है, फिर माइनस कॉमन लेके y स्क्वायर -y -2 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहां पर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y -2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y -2 y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से दो वैल्यू मिल रहा है, देखो एक है y इक्वल्स टू 2 और दूसरा है y इक्वल्स टू -1। तो अगर यहां पर x y इक्वल्स टू 2 हो, x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू ये देखो y2 है, 2 स्क्वायर -4, और y का वैल्यू अगर -1 हो, -1 होल स्क्वायर, दैट मींस x इक्वल्स टू -1, है कि नहीं? तो दैट मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या क्या मिल रहा है, -4, 2 एंड -1, -1, ठीक है? सब मिल गया। अभी हम लोग फिगर में जाएंगे। ये सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स तो 0, 0 है, ये तो कंफर्म। पॉइंट है यहां पर देखो -2, 0 और 0, -2, है कि नहीं? तो ये लाइन है, तो ये होता है। तो बाउंडेड पोर्शन कौन सा, ये, है कि नहीं? तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये एक, ये दूसरा। तो मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा -4, 2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये पॉइंट होगा -1, -1, है कि नहीं? तो फिगर देखकर तो लग रहा है ये सिमेट्रिकल अबाउट तो y एक्सिस है। अब प्रॉब्लम ये है, ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल में सॉल्व करना है, बट ये y एक्सिस को देखो क्रॉस करके चला गया, नेगेटिव x की तरफ आ गया। दैट मींस जब ऐसा केस हो, दैट मींस किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, और जो शेडेड पोर्शन है वो नीचे चला गया, नीचे आ गया, दैट मींस तब क्या करना है, यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से एक y एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लो। इधर क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या आएगा, y इक्वल्स टू, इस पॉइंट में क्या है, -2 है। इस पॉइंट में y इक्वल्स टू क्या होगा, इस पॉइंट में y इक्वल्स टू 2 है कि नहीं? ये पॉइंट में -1 होगा, -1, ये पॉइंट तो -1, -1 है। तो दैट मींस y इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू
2। अब क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर एरिया निकालेंगे, एरिया का यहाँ पर नाम दे दो, है नाम दे दो ओ ए बी, ए सी डी। सो एरिया ऑफ ओ डी बी सी ए ओ, इसके एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए देखो पहले क्या करेंगे, पहले ये पूरा इसका निकालेंगे, ठीक है? हैं? इसका एरिया किससे बाउंडेड है? देखो ये पूरा पार्ट किससे बाउंडेड है? पैराबोला से बाउंडेड है। तो पैराबोला यहां पर क्या होगा, y एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल आप सॉल्व करना है, दैट मींस x dy। तो यहां पर x dy दैट मींस माइनस वाई स्क्वायर dy, लिमिट क्या होगा -1 to 2। इससे माइनस करना है कौन सा, आपको -1 to 2 ही होगा, ये गैप पोर्शन माइनस करना है। एक गैप में दैट मींस लाइन से बाउंडेड है, यहां से लाइन में x का वैल्यू क्या होगा -y -2 dy, बस हो गया, ठीक है? अब तो यहां पर -y³/3 -1 to 2, और इधर माइनस प्लस हो जाएगा y²/2 + 2y -1 to 2। बस अभी सॉल्व करना है और आंसर निकालना है कि नहीं? सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करो, हो गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेन क्या क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब तो आता ही है जनरली। जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके रेस्पेक्ट में तो ये क्वेश्चन बहुत पानी की तरह इजी है, हैं? हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस कवर किया है, इससे तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है कि नहीं? अच्छा, यहां पर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, बाउंडेड बाय द कर्व्स क्या है, y² equals to x³, y² equals to x³, ये है फर्स्ट का। सेकेंड है mod y equals to 2x, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं? तो ये तो इरेगुलर कार तो दिखाई दे ही रहा है तो आपको। यहाँ पर x और y का डिफरेंट वैल्यू चूज करो, बॉक्स बना के x और y का वैल्यू चूज करो। और यहाँ पर जो मॉड फंक्शन है, तो यहां से दो केस निकलता है, 2x इक्वल्स टू प्लस y, 2x इक्वल्स टू प्लस y एंड 2x इक्वल्स टू माइनस y, ये दो केस निकलता है, मॉड है? तो यहाँ पर y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। मॉड फंक्शन अगर तोड़ दे तो ऐसे ही आएगा ना। और यहाँ पर जो है, अगर मैं बॉक्स बना के ये करो फिगर और ये बोलो, ये जो कार्व है 0,0 पॉइंट से पास होगा, 0,0 पॉइंट से पास होगा, ऑब्वियसली पास होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करने से देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो यहां पर अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं थोड़ा, ये किस टाइप का फिगर होगा, ये किस टाइप का फिगर होगा, यहां पर x और y का वैल्यू चूज करते रहो, है? तो ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए, ठीक है? ये ज्यादा चला गया, इस तरह होगा, ठीक है? यहाँ पर पॉजिटिव y वैल्यूज के लिए, नेगेटिव y वैल्यूज के लिए, क्योंकि y स्क्वायर है ना, जो भी मिलेगा प्लस माइनस मिलेगा। x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट कर दो, y का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस ऐसा कुछ मिलेगा। तो प्लस के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस के लिए नीचे की तरफ आएगा। दैट मींस y इक्वल्स टू +-3, तो +3 के लिए ऊपर जाएगा, -3 के लिए नीचे आएगा। तो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, बट डायरेक्शंस अलग अलग होगा। फिर नेक्स्ट इसके लिए, इसमें आप ये तो y ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ऊपर की तरफ आएगा, है? y का वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0 0 से तो पास करेगा,
तो ऑब्वियसली ये तो लाइन का फॉर्मेशन है, वो दिखाई दे रहा है लाइन का फॉर्मेशन है, ऐसा आएगा कुछ। बाउंडेड पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है बाउंडेड पोर्शन, ठीक है। तो सेम इसके लिए y का वैल्यू लेस देन 0, मतलब नीचे की तरफ आएगा, कुछ इस तरफ है, ये है बाउंडेड पोर्शन, ठीक है। अच्छा, अब तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बीच तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी तो निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, सॉल्विंग तो इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं, इसके साथ इसका, सॉल्विंग 1 एंड 2। क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और इधर है y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, तो इधर ट्वाइस एक्स पुट कर देंगे, ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दैट मीन्स 4x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल होकर एक्स इक्वल्स टू 4 मिल रहा है, देखो, दैट मीन्स ये यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर एक ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 4 ही होगा, और यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या है, 0 है। सो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, नाम दे दो O A B C, एरिया ऑफ OCABO इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4, इसका निकालेंगे पूरा पहले है, इसका ये ट्राइंगल जो पोर्शन है उसका निकालेंगे। ये तो शायद लाइन से बाउंडेड है और सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस से दिखाई दे रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है, तो लाइन से बाउंडेड है, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स dx माइनस, उससे माइनस करना है 0 to 4, ये गैप पोर्शन किससे बाउंडेड है, कार्ब से बाउंडेड है, तो कार्ब से बाउंडेड है, कार्ब क्या होगा, एक्स क्यूब होल टू द पावर हाफ dx, बस कर लो अभी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 4, और एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, 0 to 4, 2 कैंसिल, दैट मीन्स 4 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2/5 तो बाहर आ जाएगा, और उधर 4 to the power 5/2, 4 to the power 5/2, 0 तो नहीं बिठाना है, स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पर तो ये 16 माइनस 2/5 इंटू, ये 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 to the power 5, दैट मीन्स 16 माइनस 64/5, 80 माइनस 64/5, दैट मीन्स 16/5 स्क्वायर यूनिट होगा आंसर, 16/5 स्क्वायर यूनिट होगा आंसर, 16/5 इसका। और ये तो ऊपर का मिला, टोटल एरिया क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तो होगा, इसका तो सेम ही है लेंथ, जो पॉइंट यहां पर मिला यहाँ पर भी पॉइंट सेम ही है कि नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, सो द टोटल एरिया क्या होगा, ये जो मिला है ना इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स टोटल एरिया होगा 32/5 स्क्वायर यूनिट, 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर का और नीचे का मिला के, है कि नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर आओ नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, find the area of the region bounded by the curves, find the area of the region bounded by the curves, find the area of the region bounded by the curves, y equals to log ex, y equals to log ex, and y equals to 2 to the power x, x equals to half, x equals to 2। ये सब मिला के एक बाउंडेड पोर्शन बनाएगा, ये सबसे आपको एरिया निकालना है, जो बाउंडेड पोर्शन मिलेगा उसका एरिया निकालना है। तो y इक्वल्स टू लॉग ex, ये है पहला कार्व, y इक्वल्स टू 2 to the power x, ये है दूसरा कार्व,
और ये तो लाइन्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आते हैं। अब इसमें देखो, पहले तो ये इरेगुलर टाइप का कुछ भी कार्व मिले, आपको देखना है कि ये ओरिजिन से पास करता है कि नहीं, या फिर एक्सिस को टच करता है कि नहीं। एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट आपको चेक करना है whether this curve touches the x-axis or the y-axis or not. Okay, so if you put x equals to 0, log 0, but undefined, that means यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते हैं। that means x का वैल्यू that means इसमें x never equals to 0। x का वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता है, that means ये कार y एक्सिस को टच करेगा क्या? y एक्सिस को टच ये नहीं करेगा, क्योंकि y एक्सिस को टच तभी करेगा जब x का कोऑर्डिनेट 0 हो सकता है। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, दैट मींस y एक्सिस को टच नहीं करेगा। y इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर log x के जगह log किसका वैल्यू 0 होता है? log 1 क्या होता है? 0 होता है। दैट मींस यहाँ पर x का वैल्यू 1 अगर पुट कर दे, y का वैल्यू 0 मिल रहा है। दैट मीन्स दिस कार पासिंग थ्रू क्या 1, 0 1,0 पॉइंट से पास हो रहा है, ये तो कंफर्म है कि नहीं? 1,0 पॉइंट से पास हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर वो तो y एक्सिस को टच नहीं करेगा और ये x एक्सिस से इंटरसेक्ट, मींस s एक्सिस से पास होके जा रहा है। दैट मींस 1,0 ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है ना, दैट मींस ये जो कार्व है x एक्सिस को पास करके y एक्सिस के तरफ जाएगा, बट y एक्सिस को टच नहीं करेगा, है कि नहीं? अच्छा, तो ये सब मिला हम लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इस कार्व के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर तो x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, x का वैल्यू 0 पुट करने से 2 to the power 0, y का वैल्यू क्या मिल रहा है? 1। दैट मींस ये जो कार्व है यहाँ पर x का वैल्यू 0 अगर पुट कर दे, y का वैल्यू 1 मिल रहा है। दैट मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0,1। दैट मींस ये जो कार्व है 0,1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, फिर दैट मींस x का वैल्यू 0, अगर मैं y का वैल्यू 0 यहां पर पुट कर दूं, y का वैल्यू 0, दैट मींस 2 to the power एनीथिंग, आंसर क्या कभी 0 आएगा? 2 to the power x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, y का वैल्यू कभी 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। दैट मींस यहां पर y नॉट इक्वल्स टू 0 है ऑलवेज फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल x, ठीक है। दैट मींस ये जो कार्व है कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट मींस x एक्सिस जिस तरफ है ठीक उल्टा डायरेक्शन में वो चला जाएगा, ठीक है। उल्टा डायरेक्शन में जाने से ही तो वो x एक्सिस टच नहीं करेगा। यहां पर जैसे ये क्या है, ये किसको टच नहीं करेगा? y एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट मींस y एक्सिस जिस तरफ है इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में वो चला जाएगा, है कि नहीं? तो देखो, तो यहां पर थोड़ा बहुत अगर एक फिगर, राफ फिगर ड्रॉ करूं, फर्स्ट वाला जो कार्व है ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा और ये x एक्सिस को टच करता है 1,0 पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, तो y एक्सिस इस तरफ है, तो वो जो कार्व है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? उल्टा डायरेक्शन में होगा। दैट मींस इस तरफ होगा। दैट मींस देखो, ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि वो तो y एक्सिस को टच नहीं करेगा, y एक्सिस के साथ ऐसे सिमेट्रिकल होते होते नीचे चला जाएगा, कि बट y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो कार्व है ये कौन सा है? y इक्वल्स टू log e x। दूसरा जो कार्व है वो कहां पर इंटरसेक्ट करता है? 0,1। दैट मींस यहां पर 0,1, और ये y नॉट, दैट मींस x एक्सिस को टच वो नहीं करेगा कभी भी। दैट मींस जहां पर x एक्सिस है ठीक उल्टा डायरेक्शन में, दैट मींस यहां पर x एक्सिस है, उल्टा डायरेक्शन से चला जाएगा। दैट मींस डायरेक्शन ऐसा कुछ चलता रहेगा। यहां पर
जो बाउंडेड जो शेड जो बाउंडेड पार्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, बाउंडेड पार्ट क्या क्या है, x इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स सपोज यहां पर तो 1,0 है, यहां पर x इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू 2 लाइन है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 2,0 होगा। और x इक्वल्स टू हाफ, दैट मीन्स ये तो 1 है, हाफ कहां पर होगा, कुछ इस तरफ ही होगा। देखो x का वैल्यू हाफ, दैट मीन्स यहां पर कुछ आसपास होगा, ये ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है। ये होता है x इक्वल्स टू हाफ, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है हाफ कोमा 0 होगा। तो बाउंडेड पोर्शन जो है क्या मिल रहा है, देखो तो ये पूरा मिलके ये पूरा यहाँ पर बाउंडेड पोर्शन आ रहा है। देखो ये पूरा यहाँ पर बाउंडेड आ रहा है कि नहीं। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, ये तो दिखाई दे रहा है, बट प्रॉब्लम ही है नीचे चला गया। तो नीचे चला गया, हम लोग जानते हैं नीचे चले जाने से क्या होता है। ये इमेजिनरी एक्स एक्सिस यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, ये इसमें x इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आएगा, और इसमें तो x इक्वल्स टू हाफ है, बस उसके बाद तो एरिया निकालेंगे। नाम दे दो A B C D E। तो एरिया ऑफ A B C D E A, बस आ जाओ। लिमिट तो हाफ टू 2 है, ठीक है। पहले इसका निकालेंगे, पूरा जो है इसका निकालेंगे, ठीक है। ये पूरा किससे बाउंडेड है, इस कर्व से बाउंडेड है ना। ये कर्व कौन सा है, 2 to the power x dx। माइनस करेंगे हाफ टू 2, माइनस करेंगे कौन सा, ये गैप वाला पोर्शन। ये गैप वाला पोर्शन किससे बाउंडेड है, ये log x से, log x हो गया, ठीक है। तो ये 2 to the power x का फॉर्मूला था हम लोग को यहाँ पर, जैसे सपोज इंटीग्रेशन a to the power x dx, फॉर्मूला क्या होता है, a to the power x by log e a। यहाँ पर 2 to the power x by log e2, बस लिमिट बिठाओ हाफ टू 2। और यहाँ पर ये log x है, log x का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, u into v यूज करना है, दैट इज हाफ टू 2 log x into 1 dx। बस इसको भी ले लो, इसको u ले लो, फिर प्रोसीड कर दो, आ जाएगा आंसर है। प्रोसीड कर दो, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, फिर हो जाएगा, ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of the region bounded by the curves y equals to ex log x and y equals to log x by ex। e to the power x नहीं है, ex है, मल्टीप्लीकेशन में है। दैट मीन्स ये दो कर्व है, इससे बाउंडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है कि नहीं, ठीक है। नाउ आओ इस कर्व में आओ, पहले देखते हैं x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 पुट करने से, अच्छा यहां पर देखो तो यहां पर x का वैल्यू अगर मैं 0 to 1 पुट करूं, सपोज x का वैल्यू 0 से 1 तक ले रहे हैं, log x का वैल्यू कभी 0 को क्रॉस करेगा, क्योंकि log 1 0 होता है, तो 1 से छोटा 0 से बड़ा, दैट मीन्स मिडिल में आना है, दैट मीन्स ऑलवेज लेस देन 0 ही आएगा। सो log x इसके साथ ex कुछ भी मल्टीप्लाई करे उसका आंसर तो लेस देन 0 ही आएगा। दैट मीन्स 0 to 1 इस इंटरवल में इस कर्व का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ होगा। y का निगेटिव वैल्यू आ रहा है, देखो लेस देन 0 आ रहा है ना, तो ये तो y है ना,
लेस देन जीरो, दैट मीन्स निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ उसका डायरेक्शन होगा, नीचे। ठीक है, और इंटरसेक्ट कहां कहां पर कर रहा है, अब ये निकालेंगे। देखो क्यों यह मैंने यहां पर x का रेंज 0 से 1 तक लिया है, क्यों किया है? देखो x का वैल्यू 0 अगर पुट करें, y का वैल्यू क्या आ रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन का देखो 0 आ रहा है कि नहीं। इफ y इक्वल्स टू सॉरी इफ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो इफ x इक्वल्स टू 1, log 1 0 होता है ना, ये भी y इक्वल्स टू 0, दैट मींस दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0,0 और 1,0। तो यहाँ पर x का रेंज कहां से कहां तक आ रहा है, 0 और 1 के बीच आ रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने रेंज यहाँ पर 0 और 1 के बीच लिया है। मैंने देखा है कि 0 और 1 के बीच कारक का नेचर वो कैसे बिहेव करता है। तो मैंने देखा है कि 0 और 1 के बीच ये इंटरवल में कारक का नेचर जो वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें आओ, यहां पर x का वैल्यू तो कभी 0 नहीं हो सकते, तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ही x है। x का वैल्यू 0 पुट करने से तो y अनडिफाइंड हो जाता है, तो y x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, दैट मींस वो y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। फिर अगर मैं x का वैल्यू यहां पर सपोज 1 पुट करूं, log 1, y का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है कि नहीं। दैट मींस एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला 1,0, ये पॉइंट इस कार के ऊपर लाई करता है, ये तो कंफर्म है। 1,0 इस कार के ऊपर भी लाई करता है, 1,0 इस कार के ऊपर भी लाई करता है, दैट मींस दोनों कार का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो 1,0 है कि नहीं है। सो ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, दैट मींस जिस तरफ y एक्सिस होगा ठीक उल्टा डायरेक्शन में वो चला आएगा, है कि नहीं। देखो तो फिगर अगर मैं यहां पर थोड़ा ड्रॉ करूं, थोड़ा यहां पर जो है कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, हर आप तो आप x और y का वैल्यू बिठा के तो नहीं देख सकते है ना, हर जगह आप x और y का वैल्यू बिठा के फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत ये ब्रेन जो है यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेन एडवांस देने के लिए जा रहे हैं, ये शॉर्टकट जो ये प्रोसेस ये सब तो आपको सीखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो फर्स्ट कार तो देखो 0 और 1 में जो है ये कार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मींस ये पॉइंट 0,0 है और ये पॉइंट सपोज 1,0 है, दैट मींस ये जो कार है लेस देन 0 नीचे की तरफ टेंड करेगा, नीचे होते 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 फिर से वो थोड़ा डायरेक्शन मारेगा 1 की तरफ, क्योंकि 1 में जाके इंटरसेक्ट करना है ना उसको, ऐसे 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 चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड कर्व जो है ये भी 1,0 से इंटरसेक्ट करता है, ये तो कंफर्म है, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, y एक्सिस को टच नहीं करेगा ये, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस y एक्सिस जिस तरफ होगा उसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मींस यहां से शुरू कर दो, ऐसा चला जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो ये y को इंटरसेक्ट कर देगा, तो डायरेक्शन अगर इस तरफ हो कर देगा, अब इस तरफ ही आना है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से जाना है, तो y एक्सिस इस तरफ है, डायरेक्शन उस तरफ होगा, तो वहां से ही ऐसा आएगा, है कि नहीं। सो शेडेड पोर्शन कौन सा आ गया, ये आ गया आपका बाउंडेड पार्ट। अब ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो यहां पर निकालना है? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 करके देखो तो सॉल्व 1 and 2 क्या आता है, ये x log x इक्वल्स टू log x बाई ex, log x तो कैंसिल हो गया, अब e स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मींस x इक्वल्स टू 1 बाई e, दैट मींस ये जो पॉइंट है इसमें x इक्वल्स टू 1 बाई e है, ये तो कंफर्म है, बाकी y का वैल्यू तो चाहिए भी नहीं मुझे, है कि नहीं। सो दैट मींस ये है कि नहीं, तो नीचे की तरफ आ गया, दैट मींस ऐसा एक ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ करें, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 बाई e। ठीक है, अब निकाल लो, सो द एरिया नाम दे दो, a, ये b, ये c, d, e,
ठीक है. सो एरिया ऑफ लिख लो. सो एरिया ऑफ ए बी सॉरी ए सी बी डी ए, बस 1/E2 इसका निकालेंगे पूरा. पहले ये जो पार्ट है इसका निकालेंगे. तो ये कौन सा कार्ब है? सेकंड वाला शायद है कि नहीं. log x बाई ई एक्स डी एक्स. इससे माइनस कौन सा करना है? लिमिट तो सेम ही रहेगा. इससे माइनस जो है गैप वाला पोर्शन करना है. ये गैप सफेद वाला पार्ट इससे, ये जो इससे बाउंडेड है ना. तो दैट मीन्स क्या होगा? ई एक्स log x dx. ठीक है. अब ये जो e है 1/e करके बाहर निकाल दो. ये 1/E2 log x बाई x इक्वल्स टू dx. यहां पर भी e बाहर निकाल दो. 1/E2 x log x dx. यह तो u भी होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है. और इसमें log x को सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा आंसर. log x को कर दो सब्स्टिट्यूट उसका. इसमें log x को सब्स्टिट्यूट करने से 1/x dx आ जाएगा. फिर उसके बाद तो z dz करके आराम से हो जाएगा. ये है नहीं? होगा क्या ये? वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. आई थिंक इट विल बी डन. ओके. फिर और एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर करते हैं. और एक क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा ना ये? वेरी सिंपल क्वेश्चंस. आई थिंक इट विल बी डन, नो प्रॉब्लम. है कि नहीं? आओ नेक्स्ट पार्ट में आओ. फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड पार्ट. फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. ऐसे लिख लो. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. y equals to log x plus e. log x plus e. And x equals to log e 1/y. x equals to log e 1/y. ठीक है? है कि नहीं? अच्छा, अब आओ. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. यहां पर अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दें, x का वैल्यू 0 पुट करें, क्योंकि एक्सिस को टच करता है कि नहीं वो तो चेक करना है पहले. x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या होगा? log e 1. तो फिर x का वैल्यू यहां पर 0 पुट करने से y का वैल्यू 1 आ रहा है. दैट मींस एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिल गया 0,1. 0,1 पॉइंट से जो है ये कर्व जो है वो पास करेगा. ये तो कंफर्म है कि नहीं? अच्छा, x इक्वल्स टू 0 दैट मींस वो y एक्सिस को टच करेगा. अच्छा, ये क्या x एक्सिस को टच करेगा? यहाँ पर तो देखो, तो ये y का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, y का वैल्यू 0 अगर मैं पुट करूं, यहाँ पर 0 मतलब log 1. देखो यहाँ पर थोड़ा y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं. ठीक है? तो यहाँ पर log x प्लस e इक्वल्स टू क्या होगा? 0 मतलब log 1. दैट मीन्स x प्लस e इक्वल्स टू 1. दैट इज x इक्वल्स टू 1 माइनस e. वेरी गुड. दैट मीन्स दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया 1 माइनस e, 0. दैट मीन्स वो x एक्सिस को भी टच करेगा, y एक्सिस को भी टच करेगा. है कि नहीं? तो ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट ये पॉइंट है 0,1. ये है 0,1.
1 माइनस ई, 1 माइनस ई, ये 1 माइनस ई पर ये निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहां पर देखो ई का वैल्यू ई ई का वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल ई का वैल्यू लॉग से 1 से ग्रेटर होता है कि नहीं। ई का वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर होता है। दैट मीन्स यहां पर 1 माइनस ई कोमा 0 जो है निगेटिव वैल्यू आएगा ना 1 से ग्रेटर होने से, तो 1 माइनस ई कोमा 0। सो दैट मीन्स ये जो कार्व है यहां पर एक बार टच करेगा, यहां पर एक बार टच करेगा, है कि नहीं। तो डायरेक्शन तो इस तरह ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए ना, तभी तो जाके दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। अब ऐसे करेगा तो इंटरसेक्ट कहां करेगा, है कि नहीं। फिर सेकंड कर्व जो है ई का वैल्यू, सेकंड कर्व यहां पर आओ, सेकंड कर्व में y का वैल्यू देखो कभी 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगा, देखो लॉग इन्फिनिटी आ जाएगा। y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स x एक्सिस को वो कभी भी टच नहीं करेगा। रिमेंबर दिस थिंग, y एक्सिस को कभी, या y नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नेवर टचेस x एक्सिस, x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, x इक्वल्स टू 0 अगर लें यहां पर, x इक्वल्स टू 0, तो यहां पर क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 अगर लें तो x इक्वल्स टू 0 अगर लें यहां पर, तो log 1 बाई वाई इक्वल्स टू log 1, तो y का वैल्यू शायद 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0,1 आ रहा है, ये देखो 0,1। दैट मीन्स ये जो कर्व है 0,1 पॉइंट को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स 0,1 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। सो दैट मीन्स अब 0.1 को इंटरसेक्ट करने के लिए कर्व को देखो, x एक्सिस इधर है, x एक्सिस को टच नहीं करेगा, दैट मीन्स क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ये कर्व। तो ये इधर x एक्सिस है, ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर की तरफ, ये देखो ऐसा चलता रहेगा एक्सिस के साथ, वो कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर शेडेड पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये देखो, ये दैट मीन्स बाउंडेड पार्ट ये आ रहा है, यहाँ पर ये तो पार्ट कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एरिया जो है ए बी ओ, एरिया ऑफ ए बी ओ और चलता रहेगा ये, दैट मीन्स 1 माइनस ई, ये देखो 1 माइनस ई टू इंफिनिटी, 1 माइनस ई टू 1 माइनस ई टू 0 पहले, 1 माइनस ई टू 0 पहले, ठीक है। इस पार्ट का करेंगे 1 माइनस ई टू 0, मतलब ये पहला वाला कार्व, ये वाला कार्व यूज होगा, दैट मीन्स ये log x प्लस ई dx, है कि नहीं। फिर प्लस देके 0 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी तक, कैसे जाएगा, सेकंड कर्व का होगा, सेकंड कर्व से बाउंडेड है, देखो 0 से लेके इंफिनिटी, तो सेकंड कर्व कौन सा है, ये log, तो यहां से तो y का वैल्यू निकालना है, तो दैट मीन्स 1 बाई वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x, दैट मीन्स y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x dx, 0 टू इंफिनिटी। तो इसका भी सॉल्यूशन करना है कि नहीं, ठीक है, है कि नहीं। दैट मीन्स यहां पर देखो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस यहां पर कवर हुआ है? तो आप लोगों का ड्यूटी क्या है, आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग को सॉल्व करना है? यहाँ पर
बहुत सारा बुक्स है। बुक्स के बारे में आप जेडब्ल्यू में एडवांस के बुक्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। क्या क्या बुक आप लोगों को पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, आज ही बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जस्ट इस टाइप का ही क्वेश्चंस जो है आप लोगों को सॉल्व जो है करना है, ठीक है, हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है 1 माइनस ई, अच्छा ई के ऊपर अगर पावर 0, ई के ऊपर अगर पावर 0 है, ई टू दी पावर 0, आंसर क्या होता है 1। अब ई के ऊपर पावर जितना बढ़ेगा उतना 1 से ग्रेटर होता जाएगा ना यहाँ पर, है। तो ये 1 माइनस ई के ऊपर पावर क्या है 1 है, तो ऑब्वियसली वो 1 से ग्रेटर ही होगा, है कि नहीं। तो 1 से ग्रेटर है, दैट मींस ये नेगेटिव वैल्यू देगा ना, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ जाएगा, तो ये नेगेटिव पॉइंट में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फॉर मेन इन एडवांस। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय एंड जय हिंद।